So in today's class, we are going to see something called as trigonometry. So I'm sharing the screen, shared screen, and here you go, trigonometry. Okay. So if you're studying trigonometry, there are some basic concepts that you should know, right? Which are very important in trigonometry. Like for instance, okay, just give me a moment. Okay. So the basic concepts are very, very important. First, we have to understand, I like the heading name, trigonometry. Tri means 3. Gono means sides. And metry means measurement. So we're going to talk about 3 sides over here. Okay, we're going to talk about 3 sides over here. Of what? Of a triangle. Because a triangle or a triangle has 3 sides. And in trigonometry, we talk particularly only about right angle triangle. Okay, beta? So we should be very well versed with the right angle triangle. So trigonometry is only applicable in a right angle triangle. So basically how a right angle triangle looks. So here there is a mark of 90 degree. When there is this mark, this is basically 90 degree. Okay, this mark over here is basically 90 degree. 90 degree के जो सामने वाला होता है उसको हम बोलते हैं hypotenuse. Remember this. Suppose this is triangle A, B, C. What can I say? In triangle ABC, angle ABC कितना है? 90 degree है. What do we know? AC is a hypotenuse. So till now we have studied till here. कि भाई इतना तुमको पता होना चाहिए. Now there are some basic things that you should know, some basic tools that you should know while doing trigonometry. Okay, so there are basic tools that you should know while dealing trigonometry. We define angles in trigonometry. Okay, like how? So let me get to a new page. So we defines some basic formula in trigonometry. जिसको हम बोलते हैं trigonometric ratios. What are trigonometric ratios? So again, I have a right angle triangle. This is 90 degree. Let's say the name है इसका A, B, C. To define trigonometric ratios, what is ratio? What is the meaning of ratio? Ratio means something upon something. मतलब numerator में we will have something, denominator में we will have something, right? See beta, for defining this or for understanding trigonometry better, we need to define an angle. हमको angle को define करना पड़ेगा. And that angle is called as theta. Symbol है ऐसा. तो यहाँ पर एक angle लिखेंगे theta. This is a Greek symbol. This is very important for trigonometry बेटा. Theta. कुछ और भी ले सकते थे पर हमने थीटा लिया. अभी क्यों लेना है? तो पहली बात तो ये एंगल के सामने अपोजिट कौन सा है? मेरे को बताओ. इस एंगल के अपोजिट साइड कौन सा है? Which is opposite to this theta? This is opposite side. Which is adjacent? Which is hypotenuse? This is hypotenuse. And beta, which is adjacent? Adjacent मतलब बाजू वाला. तो एक ही बच गया, तो जो बच गया वही adjacent होगा. Logically तो. This is adjacent. Now when you define 6 trigonometric ratios, namely, so I'll write the name also.
Okay, this is not really good. I might use something extra or different. Okay. Sin theta, cos theta, tan theta. Don't worry about these names. Cosec theta, sec theta, and cot theta. So these are trigonometric ratios, and each will have some formulas, right? So this is like first one, second, now each will have some formulas. Now what are these formulas? Sin theta is equal to, please beta note it, opposite side upon hypotenuse. Sin theta is opposite side upon hypotenuse. So just let me erase this first because I have to write आगे का also ना. Sin theta is opposite side upon hypotenuse. Now what is opposite side here? AB is opposite side. BC is adjacent side. And AC is hypotenuse. Now why AC is hypotenuse? Because 90 degree के सामने वाला है वो. So remember this. Remember this. Okay, remember this. This box is very important. For this case, this is the box. Now tell me bachcha, what is opposite side in this? AB is the opposite. And hypotenuse क्या है? AC है. Got it? Now cos theta is adjacent side upon hypotenuse. Now which is adjacent side? थीटा का adjacent बाजू वाला कौन सा है? BC है. BC upon hypotenuse सेम ही होगा, AC होगा. समझा कि नहीं? Everybody got it or not? Okay. Now what is tan theta? Tan theta is opposite side upon adjacent side. What is the opposite side? AB. And what's the adjacent side? BC. So these are the values that you should know, bachcha log. Very important for you all. Very, very important for you all. Very important. Don't worry about this. तुम लोग को लग रहा है साइन क्या, कॉस क्या हो रहा है? डरो मत, सिंपल है. साइन थीटा मतलब क्या? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस. कॉस थीटा इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस. तुमको ट्रिक चाहिए तो ट्रिक भी बता दूंगा एक. tan थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. तुमको इतना पता होना चाहिए. ओके, तुमको इतना पता होना चाहिए. ठीक है. फर्स्ट यू शुड नो इतना सा. दैट्स इट. तो प्लीज नोट इट फर्स्ट. इतना आप लोग नोट करो. इतना नोट करो. If you have noted this, then there are few things that I should tell you more. So clear na, sin theta is opposite upon hypotenuse, cos theta is adjacent upon hypotenuse, and tan theta is opposite side upon adjacent side. Now, अगर तुमको इतना समझ में आ गया, so the few more things that you should know. So let me write those things. Let me rub this part. Okay. I could use the big rubber, but ठीक है.
Okay, chalo bhai. So there are few more things that you should know. There is something called as cosec theta. There is something called as sec theta, and there is something called as cot theta. But a cosec theta, always remember, it is opposite of sin theta. This is 1 upon sin theta. Always. अपन ने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे ना, कौन से देखे अपन ने? साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट. साइन एंड कोसेक हमेशा एक दूसरे के इनवर्स है. सेक और कॉस एक दूसरे का इनवर्स है. सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज, क्या बच गया? कॉट बच गया ना. tan cot theta is 1 upon tan theta. So remember this. So बच्चों बताओ, sin थीटा क्या है? अपोजिट साइड अपन हाइपोटेनस. तो cosec थीटा क्या हो जाएगा? उल्टा ना, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड. तो आपको सिर्फ ये 3 ही याद रखना स्टार्टिंग के, बाकी तो ऑलरेडी हो जाएंगे. साइन का उल्टा कोसेक. अब कॉस क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस. तो उल्टा हो जाएगा. नाउ व्हाट इज उल्टा? यस, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट. सो ब्यूटीफुल, सो क्रिस्प. नाउ व्हाट इज कॉट? उल्टा ऑफ tan. तो क्या हो जाएगा कॉट? टेल मी किड्स. एडजेसेंट अपॉन अपोजिट. तो ये रहे आपके फॉर्मूलाज प्यारे बच्चों. तो इसको वापस रिवाइज करते. चलो इसको वापस रिवाइज करते हैं. एक बढ़िया सा मजेदार ट्रायंगल लेते हैं, इसको रिवाइज करते हैं वापस बच्चों. वापस रिवाइज करते हैं इसको. कम ऑन. तो लेट्स से आई हैव दिस ट्रायंगल. देयर इज माय रबर. ओके. मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी. ट्रायंगल बराबर नहीं है, इसको वापस मुझे लगता है करना पड़ेगा. रफ शेप में ट्रायंगल इनको दिख नहीं रहा है मुझे. आई एम न्यू टू दिस थोड़ा, तो प्लीज कोऑपरेट विद मी. Okay, better. So this is, let's say, P Q R. Okay बेटा, 90 डिग्री है. ठीक है. Now I am asking you few things. Suppose this is theta now. Now tell me बच्चा लोग, if this is theta now, angle P is theta now. Suppose huh? Now tell me which is opposite side, which is adjacent, and which is hypotenuse. बोलो. थीटा के सामने वाला हमेशा अपोजिट होता है. तो अपोजिट क्या हो जाएगा पहले बच्चों? ये वाला थीटा के सामने वाला, ये हमेशा क्या होगा? अपोजिट साइड. सो अपोजिट क्या हो जाएगा पहले बच्चों? क्यू आर. फिर 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनस. एक्सीलेंट किड्स, हाइपोटेनस. दिस इज गोइंग टू बी पी आर. बच्चा बच क्या गया? एडजेसेंट. और यही एडजेसेंट बाजू वाला. तो एडजेसेंट क्या होगा मेरे बच्चों? पी क्यू हो जाएगा. नाउ आई एम आस्किंग यू फ्यू थिंग्स नाउ. लेट मी बी वेरी क्लियर नाउ. सपोज आई आस्क sin theta. This theta, this particular guy over here is theta. What is theta? Opposite to angle theta upon hypotenuse. थीटा के अपोजिट कौन सा है? क्यू आर है. और हाइपोटेनस क्या है? पी आर है. दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू गॉट. ओके, लेट मी बॉक्स इट. नमस्कार दोस्तों, आज हम बॉक्सिंग करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा की. तो चलिए शुरू करते हैं. ओके. तो प्यारे बच्चों, दिस इज साइन थीटा. नाउ सपोज आई आस्क यू
what is cot theta. अब आपको आप भूल गए. So you should know three things: sin, cos, tan. बच्चे लोग sin theta opposite upon hypotenuse, cos theta is adjacent upon hypotenuse. What is tan theta? Opposite upon adjacent. And cot theta क्या होता है? उल्टा ऑफ tan theta. cot theta is उल्टा ऑफ tan theta ना, आपको पढ़ा के रखा पहले ही. तो ये सब चीजें आपको बेटा याद करनी है, रोज आपको प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको याद रहेगा वो. तो व्हाट इज cot theta? देखो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको. देखो cot theta is 1 upon tan theta, sec theta is 1 upon cos theta, and cosec theta is 1 upon sin theta. So beta I have told you this. देखो this page में I have written everything. Okay. So what is cot theta? 1 upon tan theta, and tan theta is opposite upon adjacent. So what is going to be cot theta? Adjacent upon उल्टा ना, adjacent upon opposite. What is adjacent here? थीटा का opposite cot थीटा निकाल दो. थीटा का adjacent कौन सा है? PQ है. Adjacent side बेटा, adjacent. This is adjacent ना? And what is opposite? QR. Here you go. Let's box this. Okay, so we got two things. Now suppose if some gentleman comes to you and he asks, ये सब तो आपने कर लिया, very good, I have a huge respect for you, लेकिन अब कुछ अलग चाहिए मेरे को. अब कुछ अलग चाहिए मेरे को. थीटा के सामने तो हमने निकाल दी है, अब मुझे आप साइन आर निकाल के दिखाओ. चलो, अब दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. लेट मी आस्क यू ऑल दिस. चलो देखते हैं किस मेरे कौन से बच्चों को ये साइन ऑफ एंगल आर, एंगल आर का साइन निकालिए. तो ये क्या हो जाएगा? साइन का फॉर्मूला याद रखने का. सिर्फ क्या बोला मैंने? साइन का फॉर्मूला इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. मैंने बता के रखा ऑलरेडी. दिस इज अपोजिट टू एंगल आर अपॉन हाइपोटेनस. अब साइन आ रहा है ना, क्योंकि अब आर के अपोजिट कौन सा है? पी क्यू. लेकिन तुम बोल के भैया पहले तो वो अपोजिट क्यू आर था, पी क्यू कैसे हो गया? तो एडजेसेंट था. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. देखो कौन सा एंगल पूछा है. अगर पी पूछा है, एंगल पी पूछा होता या थीटा पूछा होता, थीटा और पी एक ही है ना, तो ये सब होता. लेकिन अगर मैंने आर पूछा तो चीजें बदल जाएगी पूरी की पूरी. आपको देखने का सामने कौन सा है. हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा. देखो हाइपोटेनस नेवर चेंजेस. नोट दिस. Hypotenuse for a particular triangle remains same for a particular triangle. Okay beta, so for a particular right angle triangle hypotenuse will not change. Only opposite side and adjacent side are going to change. Okay beta, so बताइए sin r opposite to r क्या है? PQ. और hypotenuse तो सेम ही होगा PR. ओके बच्चे लोग, अगर मैं पूछूं cosec r, what is cosec? साइन का उल्टा होता है ना, साइन का उल्टा है ना cosec. तो what it will be? Hypotenuse upon opposite to angle r. हाइपोटेनस तो सेम ही होगा पी आर. आर का अपोजिट कौन सा बच्चा लोग? पी क्यू. ओके, तो कौन से एंगल की बात कर रहे हैं उस हिसाब से आपको चीजें लिखनी है बच्चों. तो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू. दिस वॉज द क्वेश्चन व्हिच आई डिड. लेट अस सी अ क्वेश्चन. Let us see a question from exercise 8.1. Question number 1. So I have a triangle with me. Okay, please bear me with the figure. Not so good.
if I can get the figures, let me see. No, I'm not able to get here. Wait a second. Let me do something about it. No, this is not working. So let's do one thing. Okay. So let me make one. So everybody please open up your textbooks, exercise 8.1, question number 1, and please kindly look at this. Okay, I'm going to figure here. Chalo. Okay. P R Q. This is 90 degree given to you. This is angle P, this is angle Q. Okay. They're asking you few things. First being, so पहली बात तो you should be very clear. Very clear what they are asking you. First they are asking you, first sin P. Second they are asking you cos Q. Then asking you tan P. And then they are asking you tan Q. बच्चा लोग, look at P. Look at P. So let's say first solution part, what do I will write? So पहली बात तो in triangle PQR, angle R is 90 degree. So it's a right angle triangle. You can use the trigonometric ratios. That is the first condition. तो hypotenuse तो fix होगा. Hypotenuse क्या होगा? Hypotenuse will be side PQ क्योंकि 90 के सामने वाला फिक्स, बदलेगा सिर्फ एडजेसेंट एंड अपोजिट. अब बताइए प्यारे बच्चों, हमको निकालना है साइन पी. फर्स्ट साइन पी निकालना है. क्या होगा साइन पी? साइन का क्या होता है फॉर्मूला? अपोजिट अपॉन. देखो प्यारे बच्चों, प्लीज राइट इट एवरी डे प्लीज राइट. साइन इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. अपोजिट टू व्हाट? जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं बच्चों. तो साइन पी विल बी अपोजिट टू एंगल पी अपॉन हाइपोटेनस. प्लीज टेल मी प्यारे बच्चों, एंगल पी का अपोजिट कौन सा है? पी के अपोजिट कौन है? डिन 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 क्यू आर है ना. अपनी नजर निगाहें अगर आप फोकस करोगे तो आप कभी रॉन्ग नहीं जाओगे. व्हाट इज हाइपोटेनस? पी क्यू. तो दिस इज साइन पी. मिल गया. क्यू आर अपॉन पी क्यू. सेकंड क्या पूछ रहे हो लोग? दिस इज फर्स्ट वन. सेकंड क्या पूछ रहे लोग? कॉस क्यू. अच्छा, कॉस का फॉर्मूला मैंने क्या बता रखा था मेरे बच्चों? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस. ठीक है, लेकिन एडजेसेंट टू व्हाट? कॉस क्यू है, तो दिस इज गोइंग टू एडजेसेंट टू क्यू. रिमेंबर दिस, एडजेसेंट टू एंगल क्यू अपॉन हाइपोटेनस. प्लीज नोट दैट. बच्चे लोग यहाँ पर गलती करते हैं. यहाँ पर दे मेक मिस्टेक. बच्चा लोग, उनको लगता है साइन पी दिया तो कॉस पी दिया होगा. कॉस, देखो क्यू ये है, इसका अपोजिट पी आर है, तो इसका एडजेसेंट और हाइपोटेनस तो पी क्यू है. हाइपोटेनस में से लिख देने का क्वेश्चन में, चलो, क्योंकि वो फिक्स होगा, वो चेंज नहीं होगा. ओके, सो बताओ एडजेसेंट टू एंगल क्यू क्या होने वाला है? टेल मी. ये एंगल क्यू है, इसका एडजेसेंट क्या होगा? पी आर तो अपोजिट हो जाएगा ना बेटा. पी आर इज अपोजिट. बच्चा लोग, यू गेटिंग इट रॉन्ग. हाउ कैन आई मेक मोर सिंपलर? सोचो. बच्चा लोग, प्लीज लुक एट कॉस क्यू. उसका अपोजिट पी आर है, तो एडजेसेंट तो हो ही नहीं सकता पी आर. तो एडजेसेंट क्या होगा? ये बाजू वाला. समझा आपके? नहीं, दिस इज क्यू आर अपॉन हाइपोटेनस, तो फिक्स ही होगा पी क्यू. समझ गए? क्यू आर इज गोइंग टू बी द एडजेसेंट. नाउ नेक्स्ट इज tan p.
What is going to be tan P? Let me rub this part. थोड़ा खराब हो चुका है. tan P क्या होगा प्यारे बच्चों? tan P की बात चल रही है. जिसकी बात चल रही है उसकी बात करना है यहाँ पर. tan P क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अपोजिट टू एंगल P, उसका फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए बेटा, अपॉन एडजेसेंट टू एंगल P. प्यारे बच्चों, P के अपोजिट कौन सा है? P के अपोजिट कौन सा है? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, QR. और एडजेसेंट क्या होगा? एडजेसेंट क्या होगा? एडजेसेंट क्या होगा बच्चा लोग? एडजेसेंट क्या होगा? अपोजिट तो ये हो गया, हाइपोटेनस तो ये वाला है, तो एडजेसेंट क्या हो जाएगा बच्चा लोग? PR. उसके बाजू, एडजेसेंट मतलब कि उसके बाजू वाला, कितना याद रखना. अब तुम लोग बोले बाजू वाला तो ये भी है, लेकिन ये ऑलरेडी हाइपोटेनस है ना, 90 डिग्री के सामने वाला ना ये, तो हाइपोटेनस ही होगा ना बच्चा लोग. डिड यू गेट मी और नॉट? सो दिस इज tan P, QR अपॉन PR. लास्ट बच गया tan Q. tan Q क्या हो जाएगा? अपोजिट टू एंगल Q दिस टाइम. क्यों ऐसा लिखा मैंने? क्योंकि tan Q पूछ रहे हो लोग, समझा? अपोजिट टू Q अपॉन एडजेसेंट टू एंगल Q. अपोजिट टू एंगल Q क्या आएगा बेटा? टेल मी प्लीज. प्लीज लुक एट द फिगर बेटा. रिवाइज द फॉर्मूला. ऐसा मत सोचो मेरे को आ नहीं रहा है, मेरे को आ नहीं रहा है. रिवाइज द फॉर्मूला. Q के अपोजिट कौन सा है? PR. और एडजेसेंट कौन सा हो जाएगा बच्चों? QR हो जाएगा, क्योंकि PQ तो हाइपोटेनस है, PR अपोजिट है, तो एडजेसेंट तुम्हारा QR हो जाएगा. समझ गया बेटा? तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. दिस इज 820 का क्वेश्चन नंबर 1. प्लीज बेटा प्रैक्टिस इट प्रॉपर्ली, रिवाइज इट प्रॉपर्ली. ठीक है? नाउ लेट अस लुक द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सरसाइज 8.1, question number 2. Very simple. So what do I have? I have a question. Okay, this is X, this is Y, this is Z. This is 90 degree. And they are saying कि मेरा, देखो क्वेश्चन में देकर रखा है बेटा कि एंगल एक्स वाई जेड 90 डिग्री है. दिस इज गिवन. ओके बेटा. दे आर आल्सो गिविंग यू, देखो क्वेश्चन में ऐसा देकर रखा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है ना. व्हाट डज मीन? इसका मतलब क्या होता है? ये ए है, मतलब एक्स वाई जेड का जो पूरा लेंथ है दैट इज ए. तो ओके, सो व्हाट दे आर गिविंग यू इज वाई जेड is A, XZ is C, and XY is B. This is also given to you. What they are expecting me to find is first sin X. Now what is going to be sin X? Tell me. Sin X. Sin X, Y, Z, theta, भूल जाओ उसको. Only remember one thing, my dear friends. Opposite upon hypotenuse. लेकिन x दिया तो opposite to angle x upon hypotenuse. मैंने क्या बोला? hypotenuse मार्क करके रखो. hypotenuse कभी चेंज नहीं होगा पीरियड ट्रायंगल के लिए. तो hypotenuse हमारा क्या होगा? क्या हो जाएगा? xz. xz, x and z नहीं, xz वो साइड है. This is your hypotenuse. This will not change. ठीक है? तो अपोजिट टू एंगल x क्या है बच्चा लोग? टेल मी. x का अपोजिट कौन सा है? YZ है. हाइपोटेनस कौन सा है? फिक्स है. अरे बाबा, हाइपोटेनस फिक्स है ना. हाइपोटेनस इज साइड XZ. अब बच्चों इधर तक छोड़ देंगे तुम लोग? नहीं, क्योंकि आपको वो वैल्यू पुट करनी है जो आपको क्वेश्चन में दिया. YZ कितना दिया आपको? A दिया है. और हाइपोटेनस कितना दिया है? कितना दिया है? C दिया है.
तो आपको इधर से छोड़ना है. दिस इज थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर. ओके, इधर आपको छोड़ना है. ओके, इधर आपको छोड़ना है. दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो. ओके, दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो. सो इधर मैं ये कर देता थोड़ा सा. ओके, दिस इज द बॉक्स. Second, what they asking me? Second, what they asking me? They asking me 10Z. 10 क्या होता है? What is 10? Now ask yourself. मैंने पढ़ा के रखा तुमको. देखो, tan क्या होता है? Opposite upon adjacent. So opposite to angle Z upon adjacent to angle Z. बच्चा लोग, what is opposite to angle Z? बोलो बच्चा. Yes, YX. और adjacent क्या होगा? Tell me. Wait, इसको मैं रफ कर देता हूँ वाला पार्ट को. हाँ, now tell me. हाँ. So opposite to Z is XYX. और adjacent क्या होगा? YZ. Excellent. Hypotenuse तो XZ है, तो वो नहीं आ सकता. Now tell me, what is YX? B. और YZ क्या है? A. तो दिस इज योर सोल्यूशन पार्ट. और सेकंड बॉक्स नहीं बनाता हूँ, कचरा हो जाएगा. ओके, चलो बच्चा लोग. थर्ड वन. इट्स फन राइट? इट्स इजी ना? इजी लग रहा है ना सब लोगों को? प्लीज कमेंट एंड टेल मी. इजी लग रहा है ना? चलो बच्चा लोग. नेक्स्ट, cos x. सिंपल. cos x से डरने का नहीं. cos का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज cos? adjacent upon hypotenuse. Adjacent to what? Adjacent to angle x upon hypotenuse, which is not going to change ever in this lifetime. Adjacent to angle x क्या आएगा? x का adjacent कौन सा है? देखो, xz तो हो नहीं सकता क्योंकि वो hypotenuse है. This is your hypotenuse. इसको छेड़छाड़ी करने का ही नहीं. तो yx हो जाएगा बच्चों लोग. समझ गए ना? Hypotenuse क्या हो जाएगा? कभी चेंज नहीं होगा. xz. What is yx? It is b. and xz कितना है? c है. Got it बच्चा लोग? Last one. 10x. What is going to be 10x? Simple. Opposite to angle x upon adjacent to angle x. So x का opposite कौन सा होगा? yz. अपॉन adjacent के क्या होगा? ये हो जाएगा yx. yz कितना हो गया? और yx कितना हो जाएगा? p. So बेटा दिस इज योर सोल्यूशन पार्ट. ये आपको आ गए पहला क्वेश्चन. दूसरा, प्रॉपर 2 मार्क का 4 मार्क का डिपेंडिंग ऑन स्कूल दे आस्क दिस क्वेश्चन. So very important and very easy also. I hope you all understood it बेटा very nicely, very easily. है ना बच्चा लोग? Got it ना? ठीक है. Please tell me, you have brought this technology so that you can understand in a better way. How much time is remaining? How can we know that? Okay, anyways, no issues. Let us continue with the third question. Exercise 8.1, question 3. Okay. Let us look at this easy question once again. Let me draw the figure for you all. Next time we will insert and paste the figures itself, okay, so that we don't have to waste the time. But the reason is why I draw the figure is because you should also have the habit of drawing figures. In geometry, without figures, there is no meaning to it. Okay, bachcha lo? So that's the reason I draw figures. That's the only reason I draw figure. Or else I could have really copy pasted it also. But I don't find it as a good idea. Okay, so let's say this is a triangle L M N. They're telling you this is 90,
दे आर टेलिंग यू एंगल एल इज 50 डिग्री, एंगल एन कितना दे के रखा उन्होंने 40 डिग्री, तो आपको जो भी दे के रखा था ना बेटा क्वेश्चन में लिख देने का उसको 40 डिग्री। एंगल एन एल कितना होगा एंगल, चलो क्वेश्चन में समझो नहीं दिया होगा एल, तो कितना होगा गेस करो। अगर ये 90 है ये 40 है तो बचा हुआ एंगल ये होगा ना, तो 50 हो जाएगा, 180 माइनस 90, और दैट यू नो ना इन अ ट्रायंगल द एंगल सम इज 180 डिग्री। सो अगर क्वेश्चन में अभी तो दिया हुआ है, लोगों ने गिवन दिया है दोनों इन्फॉर्मेशन, अगर नहीं देंगे तो यू शुड नो क्या हाउ टू फाइंड आउट। चलो ठीक है, अब बोलो क्या पूछ रहा है, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन जो 50 डिग्री है। चलो भैया इसको ओपन करते हैं अभी। अब तो तुम लोग चने ममरे की तरह हो गया होगा ये आप लोगों के लिए। क्या यूज करो आप लोग बताए रेड करे, चलो ठीक है ओके। चलो बच्चा लोग पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो लोग, साइन 50, साइन 50 क्या होगा। तो पहली चीज तो बेटा 90 हाइपोटेनस मार्क कर दो यार, चलो ये हाइपोटेनस होगा क्योंकि 90 के सामने वाला है ये, है ना। व्हाट इज गोइंग टू बी साइन 50 अपोजिट टू एंगल 50, कभी भी रॉन्ग नहीं जाओगे, अपॉन हाइपोटेनस। 50 के अपोजिट कौन सा है, यस बेटा यस एम एन, और हाइपोटेनस कौन सा है, यस बेटा, सो ब्यूटिफुल, रियली ब्यूटिफुल। व्हाट इज गोइंग टू बी cos 50 adjacent to angle 50 अपन हाइपोटेनस। याद है ना, फिर फॉर्मूलाज याद रखना है आपको, फिर आप बोलोगे समझ नहीं रहा है, फॉर्मूलाज नहीं आएंगे तो आपको क्या ही समझेगा बेटा, एवरीथिंग इज सो सिंपल बट यू शुड नो द फॉर्मूला ना। एडजेसेंट टू 50 क्या है, देखो 50 का अपोजिट एम एन है, हाइपोटेनस एल एन है, तो एडजेसेंट तुम्हारा क्या होगा एल एम हो जाएगा, और हाइपोटेनस क्या है वो सेम है, चाहिए तो लिख लेने का, हाइपोटेनस फॉर दिस ट्राइंगल इज साइड एल एन, दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो ऑलवेज, ओके। चलो नेक्स्ट, तो अपने कितना कर लिया अब तक, ये कर लिया। नेक्स्ट इज tan 40, व्हाट इज गोइंग टू बी tan 40 अपोजिट टू एंगल 40 अपॉन एडजेसेंट टू एंगल 40। एडजेसेंट टू एंगल 40 कितना होगा बच्चों, अपोजिट क्या हो जाएगा पहले तो एल एम, और एडजेसेंट क्या हो जाएगा एम एन। ब्यूटीफुल, अभी आप लोग खुद से आंसर दे पा रहे हो। देखिए जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो आप भी आंसर दो, आई नो यू ऑल आर वाचिंग थ्रू अ वीडियो बट ट्राई गिविंग योर आंसर्स, लेट्स मेक इट पर्सनलाइज। जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछो, विल मेक दिस बेटर देन एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड, ओके बेटा। आई विल गिव माय 100%, विल कवर ईच एंड एवरीथिंग। cos 40 तो एडजेसेंट टू एंगल 40 अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट टू एंगल 40 क्या होगा बच्चों, यस बेटा, देखो ये तो अपोजिट है सामने वाला, ये एडजेसेंट है तुम्हारा एम एन, और हाइपोटेनस क्या है तुम्हारा, व्हाट इज हाइपोटेनस बच्चा लोग, प्लीज लेट मी नो क्या है, यस बेटा। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, कांग्रेचुलेशंस, आप लोग ने मेरे साथ एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी, मेक नोट्स, रिवाइज फॉर्मूलाज एंड दिस इज इट। तो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4, ओके बच्चा लोग। देखो एवरीथिंग इज डन इन अ वेरी स्मूथ मैनर, आपको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लो, लेकिन आई विल ऑलवेज प्रेफर मेक योर ओन नोट्स, make your own notes, always make your notes बच्चा लोग, always keep this a habit of making your own notes. When you make your own notes you're not dependent on anyone बच्चा लोग, because then you have a clear idea. So let me make the figure for you all. Okay, this is a triangle. This is theta, this is alpha, डरो मत, साइन देके डरो मत, this is 90, this is 90, you don't worry about sign, ये अल्फा क्या है ये थीटा क्या है। So
ये अल्फा ऐसे बनाया मैंने, एंड दिस इज थीटा. ओके, दिस यू नो. नाउ व्हाट दे टेलिंग यू इज दिस इज पी. इसको रफ कर देता हूं मैं. बच्चा लोग, दिस इज पी, दिस इज आर, दिस इज क्यू, दिस इज एस. नाउ बच्चा लोग, open your textbook please everybody. Okay, open your textbook and can you see alpha? This is an angle, huh? Theta is an angle, so don't worry about it. Now based on this, there are different questions that they're asking you. First is asking you sin alpha क्या होगा. So look at this triangle PRQ. So एक triangle ये देखो, चाहिए तो अलग से बना के रखो इस triangle को. PRQ, this is our alpha. अलग से बना दिया मैंने इस ट्रायंगल को, छोटे से ट्रायंगल को अलग से बना दिया. साइन अल्फा क्या होगा बेटा? अल्फा का अपोजिट क्या हो जाएगा? साइन का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट टू एंगल अल्फा अपॉन हाइपोटेनस. क्या है अपोजिट टू एंगल अल्फा? व्हाट इज अपोजिट टू एंगल अल्फा? प्लीज टेल मी बेटा, व्हाट इज अपोजिट टू एंगल अल्फा? एवरीबॉडी प्लीज टेल मी. यस एवरीबॉडी, कम ऑन. अपोजिट टू एंगल अल्फा क्या है? ये है PQ है, और हाइपोटेनस तो फिक्स हो गई ट्रायंगल के लिए, ये 90 डिग्री है ये वाला, तो दिस इज गोइंग टू बी हाइपोटेनस PR. गॉट इट बेटा? PQ अपॉन PR. व्हाट इज कॉस अल्फा? कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? एडजेसेंट टू एंगल अल्फा अपॉन हाइपोटेनस. एडजेसेंट टू एंगल अल्फा क्या है? RQ, और हाइपोटेनस कितना है? PR. ये फिक्स है ये ट्रायंगल के लिए, दिस इज द हाइपोटेनस. नेक्स्ट वन, व्हाट इज tan अल्फा? अपोजिट टू एंगल अल्फा, एडजेसेंट टू एंगल अल्फा. अपोजिट एंगल अल्फा क्या है? टेल मी. एंगल अल्फा का अपोजिट कौन सा है? PQ. और एडजेसेंट क्या है? दिस इज अपोजिट and this is adjacent RQ. Got it or not? समझा बेटा सब लोगों को? Now this is done. आगे लोग और पूछ रहे हैं, इनको भी कम नहीं है, इनको भी पूछना है. तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करनी है टेक्स्ट बुक वाला को, क्वेश्चन पे क्वेश्चन दे रहे हैं ना, बट हम भी करते जाएंगे, रुकेंगे नहीं. बराबर के नहीं? चलो जी, चलो. Now they are telling you to find sin theta. ये तो हमने देखा हुआ है, थीटा तो हमारा दोस्त है. cos थीटा एंड tan थीटा. sin थीटा क्या देगा? ये ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला. ओके, लुक एट दिस. इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस कौन सा है बेटा? यस, दिस इज हाइपोटेनस, क्योंकि 90 डिग्री है ना, ये थीटा है, तो इसके लिए अपोजिट ये हो जाएगा. सो ये देखो, ये ट्रायंगल ऐसा कुछ तुम साइड में रफली बना सकते हो, चाहिए तो. नहीं जरूरत है, बहुत सारे बच्चों को प्रैक्टिस इतनी अच्छी तरह से हो जाती है, उनको जरूरत भी नहीं पड़ती. PQ ऐसे है, ये हाइपोटेनस है, ये अपोजिट है, और ये एडजेसेंट है. साइन थीटा क्या होगा? अपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनस. अपोजिट टू एंगल थीटा कितना होगा? कितना होगा बच्चों? अपोजिट एंगल थीटा क्या है? QS. और हाइपोटेनस क्या है? एक्सीलेंट. नाउ यू हैव बिकम एक्सपर्ट एवरीबॉडी. यस और नॉट? cos थीटा क्या हो जाएगा? एडजेसेंट टू एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनस. एडजेसेंट टू एंगल थीटा कितना है? PQ. और हाइपोटेनस कितना है? यस. tan थीटा कितना है? बोलो बेटा. अपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन एडजेसेंट टू एंगल थीटा. अपोजिट क्या है थीटा का? अगेन QS. और एडजेसेंट क्या है? PQ. So this covers your entire exercise 8.1. Thank you so much for your time. Make notes, revise properly, and it was really great teaching you all. So please beta revise it in a systematic way. Okay.
Thank you so much, everybody. Thank you so much.